हेलो And then he blocked me from Instagram. सॉरी मैं तुझे कट करूँ. हार लेकर आए उसे बात तो करेंगे. Last 3 weeks of my life were pathetic, like pathetic. In caps. I'm just so sad right now. आज कोई डे तो नहीं होगा पुच्ची वुच्ची करी होगी किसी को याद आ गया होगा. Most ridiculous arguments friends have had. Oh, घर से निकल रहा. How sweet. तो बताओ लड़कियों के guy best friend आते कहाँ से? Do you think a girl and a guy can be friends? अपना टाइम आएगा. कट कट कट. What's up, sister? Hi guys, I'm Pritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, it's hot and humid right now. The temperature is, I think, 44. Can't do anything about it. And the fans are off because of the sound quality. That's how much we love you guys. In this podcast, we're gonna talk about friendships. Actually, we wanted to discuss this in the last podcast, but we couldn't because we started on a topic, went to a different tangent altogether, and we thought, why not talk about insecurities only? Because हमने half podcast में वही discuss कर लिया था. But in this podcast, we're gonna talk about friendships and we're gonna take your questions that we received. उससे पहले let's start with this कि what's your first memory of a friendship bond? Of friendship. Yeah. First memory. When you experienced friendship. The strongest and the best memory friendship ki I remember, I moved to a different school. I was in 3rd standard and I found a friend. I had the best friendship and ऐसा भी कुछ नहीं था. Like I don't know, maybe I was experiencing friendship for the first time. Like we used to do everything together, studies and sports and ऐसे होता है ना, like you vibe with someone and आप exactly same होते हो. Like we were good in studies also and सारी चीजों में like your teachers are also pushing you together. And then for good 3 years we were inseparable. And then she had a twin sister. She moved to her section and I also moved to that section because mama I want to move with my friend. But somehow like that fizzled out because I feel वो sister bond से ऊपर friendship शायद कभी नहीं हो पाती है. And maybe like ये obviously अगर वो उस टाइम पर मेंटेन करना चाहता तो हो जाता उसकी साइड से. yeah, but very good memories, like very good memories I have with that person. What's your earliest memory of friendship? अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ फ्रेंडशिप आई थिंक मेरा अर्लीस्ट तो 5th और 6th स्टैंडर्ड ही होगा जो मुझे अभी तक याद है. वी वर ग्रुप ऑफ 4 पीपल and I still remember that friendship, that bond we used to share. And वो होता नहीं है 4 लड़कियाँ स्कूल की FOMO shots. या बिल्कुल सेम सेक्शन सब कुछ और साथ वाले बेंचेस पे बैठना and used to talk. and हमें किसी का परवाह ही नहीं होती थी कि स्कूल में क्या चल रहा है, टीचर क्या बोल रही है, किसको क्या सुना रहा है और एक साथ बिचिंग करनी टीचर्स की. तो वो कोर मेमोरी जो है मेरी ऑब्वियसली स्कूल की फर्स्ट फ्रेंडशिप मैंने वो एक्सपीरियंस करी थी. देन आई शिफ्टेड स्कूल्स एंड उसके बाद वो ऑब्वियसली वो बॉन्ड ही नहीं रहा. वी ट्राई टू मेंटेन दैट बॉन्ड बट वो हुआ ही नहीं. आई थिंक तुम उस टाइम पर ग्रो भी कर रहे होते हैं तुम्हारे टीनेज ईयर्स होते हैं. आई वाज इन 5th 6th स्टैंडर्ड एंड वो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं 8th 9th 10th. उसमें आपको और ज्यादा फ्रेंडशिप्स, मतलब मैं भी दूसरे स्कूल में गई थी एंड मेरे को वहाँ पर आई फाउंड अ रियली गुड फ्रेंड एंड आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद हर ओनली. एंड तो फिर वो पहला वाला थोड़ा सा बॉन्ड खत्म हो गया. देन we never contacted each other. I think but friendships are so beautiful. I think I don't know, मतलब a lot of people say that friendships आपको ज़्यादा grow कराती है, even more than your relationships. You grow in friendships because I don't know, like it's so different. I don't think so इतना pressure होता है friendships पे, है ना, जितना relationship पे pressure होता है that you have to be this person, मतलब everything. and वो जब expectations कम होती है, maybe romantically वो expectations नहीं होती, तो वो एक बड़ी beautiful चीज़ होती है. like you're bonding with someone and unknowingly when you be देखो पसीना कितना. दीक्षा is sweating and I feel like अभी literally 2 मिनट में क्वेश्चन उठा के दीक्षा is gonna throw at me because आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं बिकॉज आई वॉज अनवेल एंड दीक्षा डिसाइडेड चल ठीक है कुछ नहीं होता, वील नॉट शूट बिकॉज यूर अनवेल. एंड आज मैंने कल दीक्षा से कंफर्म करा था गाइस कि आर वी शूटिंग टुमारो. एंड मैं ना थोड़ी सी ऐसे हूँ कि नहीं लेट्स नॉट मिस इट एंड ये सब चीजें और वो करके. तो दीक्षा को मैंने पुश करा है जबरदस्ती. दीक्षा का मन नहीं था आज शूट करने का, तो मैंने बोला कर लेंगे कहती नहीं आई डोंट थिंक सो कल फीसेबल होगा. मैंने बोला नहीं कर लेंगे. फिर दीक्षा ने हाँ बोल दिया. सुबह से मैं ये डिसीजन रिग्रेट कर रही हूँ और दीक्षा woke up on the wrong side of the bed. Clearly not happy right now, but we shall sail through. Yes. I was saying कि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ होती है फ्रेंडशिप्स, किसी पे इतना प्रेशर नहीं होता एंड यू जस्ट बी फ्रेंड्स विद समवन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. लाइक देयर इज नथिंग इन्वॉल्व्ड कि कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है. यू जस्ट लाइक ईच अदर्स कंपनी, दैट्स व्हाई यू आर फ्रेंड्स. मैं अभी उसका अपनी फ्रेंडशिप का बताना चाहूँगी. वी वर 4 फ्रेंड्स एंड अगर मैं अब फेसबुक खोलती हूँ 2 ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मैरिड एंड 1 कमिटेड सुसाइड. पता नहीं मेरा तब तक उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं था एंड आई गॉट टू नो अबाउट हर एंड आई वॉज वेरी इन शॉक होता ना कि वाई डिड शी डू दैट. बट पता नहीं, यू नो, आई होप मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में होती उस टाइम
पर एंड आई कुड जस्ट आस्क हर कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, एंड कोई भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं था, बट 2 of my other friends got married and they have children also. So I was like कितने सारा जल्दी बड़े हो जाते लोग. मैं उसी एज में बैठी हुई पॉडकास्ट कर रही हूँ यहाँ पर अपनी बहन के साथ बैठकर. कह रही है अपनी बहन के साथ बैठ. इतनी गर्मी में ऐसे स्टूडियो में बैठे हुए, बट या शी गॉट मैरिड. सबके अपने अलग अलग गोल्स एंड लाइफ होती है, कोई डेस्टिनी होती है, एंड आई फील मेरी ये डेस्टिनी मेरे को ज्यादा प्रेफरेबल है. A lot of your friends are married. हाँ, A lot of your मैं प्रेफर भी ना करती टू बी मैरिड व्हेन आई वाज 26 एंड हैव अ किड इन माय लाइफ. ओह गॉड. Yeah, even my friend I was talking about, as soon as she got out of college, matlab she was I think topper, matlab good in studies and good in everything, and she was the popular girl in our school. And when she got married, I felt that maybe like she's gonna pursue her career. And when she got married, I was also shocked. हम obviously ऐसे टच में नहीं थे, हम ऐसे रैंडमली जैसे कॉलेज फेस्ट वगैरह पे कभी मिल लेते, रैंडम ऐसे कभी लाइक वी बम्प्ड इनटू ईच अदर एंड हम कॉर्डियल थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था दैट वो बुरे नोट पे एंड हुआ ये वो. बट व्हेन शी गॉट मैरिड, लाइक आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. लाइक ऐसे नहीं होता, आपने अपने माइंड में किसी की इमेज बना रखी होती है, लाइक उसको पेडेस्टल पे रखा होता है, आपको लगा होता है दिस पर्सन इज गोना डू लाइक क्रेजी थिंग्स इन लाइफ एंड दिस एंड दैट ये वो. मतलब मैंने उसको कभी एसोसिएट नहीं करा था कि वो कॉलेज के बाद सीधा शी विल गेट मैरिड, बिकॉज शी हैड बिग ड्रीम्स एंड वो शी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट. एंड मुझे ऐसा लगता था लाइक शी इज सो स्टूडियस. She's gonna pursue. Same happened with my friend. She was very bold. Out of 4 of us, she was very bold and exactly very studious and very full of desires and goals and everything. And she got married first. Yeah. Like क्या हो रहा है ये? Why? Yeah. Maybe family pressure. Maybe I don't know. Yeah, maybe she wanted to get married. Family pressure. Yeah, family pressure भी हो सकता है, because I had a different thing in my mind also. मुझे ऐसे लगता था while growing up, एक certain age होती है ना कि by 20 you're gonna do this, फिर वो age बड़ी हो के आई, by 25 you're gonna get married and have kids, फिर होता है by 30. Now I think it has been pushed. I think what I've seen right now is 35 तक भी like people don't mind. पहले ऐसे लगता था oh if you don't get married by 25 कोई शादी नहीं करेगा, ये सब सुनने को मिलता था ना. Now I think people are also evolving and I feel like whatever path you choose, like be it getting married or be it not getting married early, just make sure that you're happy. That matters a lot and this is something which I tell you every now and then. And like personally मेरा friend group में एक सिनेरियो रहा है ये, like there's friend की friend है ये, और older sister is 34 I think so. उसके लिए उसके पेरेंट्स एक रिश्ता लेकर आए थे एंड शी वाज लाइक कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मेरे को ये नहीं पसंद आया एंड आई डोंट सी माई फ्यूचर विद दिस गाय. सो हर पेरेंट्स वर लाइक बट यू आर 34 you have to get married. She was like I won't get married because I have to get married because of society pressure. I will get married when I want to and this is my life. I can stay single at your home till the time I want to, and if you have a problem let me know, I'll move out. And they were like no, your happiness is everything for us and I really want you to get married to a person जो कि तुझे खुश रखेगा, be it तुझे 40 में जाकर मिले. My very close friend sister is also 31 and she's thinking of going abroad for a year to pursue her career. Oh. She was like I got this opportunity for a year, I really want to go with this opportunity because money is good and everything. And her parents were like you don't want to get married right now because you're 31. She was like no, अभी मेरे को अपना काम करना है, I'll see जब मिलेगा, अभी कुछ नहीं होता, 31 की तो. और उसके पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव है. she's planning next month to move for a year. So इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है. Every girl is feeling right now कि I want to get married when I feel like, not when society feels like. Yeah. Before we move on to the next topic, I just have one thing to share, that make sure that you're financially independent. No matter what you choose, if you can, मुझे पता है सबके circumstances बहुत different होते हैं, but make sure you know a skill or a hobby or something that you can provide for yourself in future, because that will go a long way. You're never dependent on a person for that. If you choose a different path, if you feel like no, like I want to be this person, that's a different call altogether, but you should have the option कि टी-शर्ट पीछे से पूरी गीली हो गई है. it is too hot. आपको भी तो कितनी गर्मी लग रही होगी. But yes, moving on. Coming back to friendships. मैं ही बोलना चाहती हूँ, पंजाबी हाउस होल्ड्स में ना मैं जैसे डिस्क्राइब करूँगी लोगों को ऐसे वो ना लगे, इसलिए मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि सबके सब बहुत वो बनता है क्लासी, बट पंजाबी हाउस होल्ड सबको पता है कैसे होते हैं. So growing up, our mother was very straightforward about this fact. She is a housewife and obviously कभी भी उनको जब पैसे चाहिए होते हैं, कुछ चाहिए होता है, then Papa has a right to say no to her. According to him, he had a right, but obviously उनके पास right नहीं है to say no to his wife because पापा जो ऑन कर रहे हैं वो मम्मा का भी है. So obviously husbands मना कर देते हैं कि नहीं लेना अभी, ये नहीं लेना. तो मम्मा growing up, our mother always taught us to be independent and never depend on your husband or anybody in future. And I
आई थिंक हमारे माइंड में वो ऐसे बचपन से स्टक कर गया, इसलिए आई स्टिल गो आउट विद माई बॉयफ्रेंड और वी गो आउट विद आवर फ्रेंड्स, हमें ऐसे एकदम से बर्डन लगने लग जाता है इफ समवन पेस फॉर अस, राइट? हम दोनों को एक्चुअली लगता है अगर हम दोनों कभी साथ में भी जा रहे हो तो हम दोनों को वो भी लगता है कभी यार अच्छा तू पे कर यार, मेरे को लगता है नहीं नहीं यार ये क्यों अकेले पे कर रही है, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट इन दैट वे। आई फील ये बहुत अच्छा हमने अर्ली ऑन मम्मा ने बहुत माइंड में डाल दिया था, एंड इट्स अ रियली नाइस थिंग टू बी इंडिपेंडेंट बिकॉज यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन योर ओन टर्म्स। चलो, कमिंग बैक टू फ्रेंडशिप, हु इज योर ओल्डेस्ट फ्रेंड? अभी तक my best friend's husband. Oh, Dhruv. Yeah, he's my oldest friend. I had an oldest friend and I was really attached to him. Starting से ही ना मुझे लगता है कि I was very into guys, मतलब friendship में भी I was very comfortable with guys rather than girls. So I had a really good friend, one girlfriend. Obviously मैंने ये friendship breakup अपना share कर रखा है पहले भी podcast में. But this guy वो मेरे पुराने school से था and we kept in touch. अभी last 2 years तक we kept in touch and he got married. I don't know, all of a sudden I got to know and we were still talking very good terms. We used to talk कि कभी पार्टी वार्टी या फिर कभी भी कुछ भी he used to feel low मेरे को कॉल कर लेता था, मेरे को भी मुझे पता था अच्छा he is there for me no matter what, and I used to take pride in it that he is my oldest friend and he knows me so well. All of a sudden I got to know from Stuti's husband कि oh he got roca-fied, उसका तो आज ही रिश्ता हुआ है. And I was like what, इसने बताया नहीं. And I called him, I was very happy and angry also, तूने बताया नहीं कितनी गलत बात है. And he behaved really strange. और स्तुति मेरे साथ में बैठी हुई थी, ब्लूटूथ पे फोन है, वो ऐसे बात कर रहा है मुझसे कि एज इफ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनीमोर. एंड मेरे को लगा पता नहीं क्या स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है, मे बी वो थोड़ा सा ओवरवेलम फील कर रहा हो कि अभी अभी रिश्ता हुआ है वो. मैंने फिर से कॉल करा नेक्स्ट वीक, मैं कहा तूने बताया नहीं मुझे शादी कब है ये वो. हाँ ठीक है यार, आई लाइक्ड इट, आई लाइक्ड हर एंड या वी आर गेटिंग मैरिड. मैंने कहा ओ वेरी हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशन, बट इजंट इट टू अर्ली फॉर यू? लाइक मेरे को तेरे गोल्स वगैरह पता है तो मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर इट. फैमिली प्रेशर पे तो नहीं कर रहा बिकॉज योर ब्रदर इज मैरिड इतने टाइम से. इट्स लाइक नो 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 आई वांट टू गेट मैरिड. ठीक है, उसका भी मन था बिकॉज ही वाज परसुइंग लॉ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हो गया था उसका लॉ पूरा एंड उसका मन था टू गेट सेटल डाउन, बट एकदम से हो जाएगा मुझे नहीं पता था. एंड फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन उसने बिल्कुल मेरे से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया. ही गॉट मैरिड, उसने मुझे इनवाइट भी नहीं करा अपनी शादी पे. एंड देन ही ब्लॉक्ड मी फ्रॉम इंस्टाग्राम. ही ब्लॉक्ड मी फ्रॉम इंस्टाग्राम, ही अनफ्रेंड मी फ्रॉम फेसबुक. आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है. ही डिड नॉट विश मी ऑन माय बर्थडे. आई स्टिल विश्ड हिम ऑन हिज बर्थडे बिकॉज तुझे पता मेरे लिए बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन दो मेरी बात नहीं हो रही है किसी से, बट एक पॉइंट पे कोई फ्रेंड रहा है मेरे लिए, मैं उसको बर्थडे विश करूंगी. आई विश्ड हिम ऑन हिज बर्थडे, ही डिड नॉट विश मी ऑन माय बर्थडे. तब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था कि आई थिंक नाउ इट्स ओवर, वी आर डन. नाउ आई मीट हिज ब्रदर इन माई जिम. वो कभी भी बोलता है ना उसके बाद मैंने कहा छोड़ो यार आप बताओ. मैं लिटरली बात करेगा और नहीं करता. दिस इज रियली बैड. यू कांट डू इट. इफ यू गॉट मैरिड तो आप ये नहीं ब्लॉक कर दोगे. पता नहीं हाउ डू पीपल चेंज. मतलब आई अंडरस्टैंड हर कोई डिफरेंट फेज में, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट इफ यू आर लिविंग योर लाइफ हैप्पीली, आई हैव सीन पीपल चेंज. लाइक एक टाइम पे यू आर सो इंपॉर्टेंट फॉर देम व्हेन दे नीड यू, एंड व्हेन दे आर डन दे ऐसे पिक यू एंड थ्रो यू आउट ऑफ द लाइफ कि नाउ आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट नीड यू. एंड दैट्स सो सैड. That's so sad. And blocking someone and moving on and behaving like this person is not in your life anymore. Like that's so sad. But pata hai, one thing I've realized this year, that no matter what life goes on, you can't control people. You can't change people. Someday somebody can tell you that, oh, you're so important, you're this and that. And the other day the person can change because you can't. Like you can't control anyone. And as long as you have your emotions intact and as long as you hold yourself together ki no matter what happens, you're gonna crash, you're gonna burn, you're human at the end of the day. You can't just pretend that everything's okay, but just know that you're gonna be there for you at the end of the day. And coming to that, we're talking about friendship breakups. Abhi jaise you shared your experience aise. I've also had friendship breakup to aise nahi hua ki oh like kabhi baat mat kar liyo ye wo, but somehow aisa hota na like you grow apart in life. Like बहुत weird सिनेरियोज हुए. मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप्स जितने भी मेरे जैसे अभी क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी कभी बात करती हूँ, उनके स्कूल और उसके भी जो पुराने फ्रेंड्स, कोई नया फ्रेंड भी बनता है वो अपनी स्टोरीज बताते हैं. सब हमेशा ये बताते हैं कि मेरा इसके साथ ये इशू हुआ था बट हम और क्लोजर आ गए, या हम बेटर फ्रेंड्स बन गए, या हमारे भी फेजेस आते हैं हम कभी कभी बात नहीं करते बट वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर दैट. मुझे ऐसा लगता है इफ यू वांट टू मेंटेन फ्रेंडशिप विद समवन, सूनर और लेटर आप उसको मैनेज कर लेते हो. लाइक इवन इफ जैसे वी ऑल्सो हैव आवर डेज एंड कभी कभी आज बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट ओनली हम वी कुंडे अग्री ऑन वन थिंग कि करना है कि नहीं करना है, या जो भी XYZ एज स्मॉल एज दैट. जब ईगोज और जब वो सब चीजें बीच में आ जाती है ना, दैट कभी आपको ये भी नहीं पता होता आपके साथ रहते रहते कोई आपको हेट कर रहा है. समटाइम्स you're living with a friend and maybe वो एक different position पे है, they अंदर से start hating you because you may be at a different place in your life and according to them you're happy and you might have different friends or some XYZ. मुझे ऐसा लगता है अगर
एज अ पर्सन आप इंडिविजुअली अगर थोड़े से सॉर्टेड हो ना अपने हेड में, तब आपकी फ्रेंडशिप्स भी रहती हैं और सस्टेन भी करती है. लाइक इन द एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग. For yourself. Yeah, you have to be okay कि यार मेरे पास ये हो नहीं हो, I know I have myself and I know I can be a good friend and इसका अच्छा टाइम चल रहा है, मेरा भी आ जाएगा. Like you have to build each other up just like you do with your siblings, right? उनके साथ आप ये सब नहीं करते ना कि इसको ये चीज क्यों मिली या मुझे क्यों नहीं ये मिली. And this way I'm very blessed because I have a friend like that, a girlfriend. Yeah. And I sometimes feel कि मतलब ऐसे कोई अपनी situation भी बताता ना, oh my friend got jealous and ऐसा हुआ वैसा हुआ. And sometimes मैं कभी कभार ऐसे analyze भी करती हूँ उसको कि maybe ऐसे हो रहा है, maybe ये भी ऐसे feel तो नहीं कर रही. That jealousy, that wanting to be better than me is never in her. मैं देख ही नहीं पाती हूँ, उसके अंदर है ही नहीं. And I feel very grateful for that because I know कि we don't talk much. हम साथ में काम करते हैं but हमारे बीच में वो personal conversations बहुत कम होती हैं, professional ज़्यादा होती है. Because obviously अगर तुम साथ में कर रहे हो and she is working with me and हम फोन उठाते हैं, अच्छा ये काम है ये काम है. But I feel very grateful that I have a friend like her who always wants me to go forward and do better. and do better in life. And she was the happiest when I got verified. She was getting married and उसका सारा काम चल रहा था. And when I told her कि I got verified, she was the happiest on phone. I was talking to her, I was like यार मेरा बिल्कुल Instagram पे मन नहीं कर रहा and वो 1 million and everything. And she was rooting for me like verify भी हो गई ना, ये भी होगा. Sometimes आपको पता नहीं लगता वो फ्रेंडशिप आपको कैसे मिल जाती है. एंड वी स्टार्टेड ऑफ एज एनिमीज, नॉट एनिमीज. आई यूज्ड टू बी वेरी जेलस ऑफ हर बिकॉज शी यूज्ड टू हैंग आउट विद माय एक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी वर नॉट ऑन गुड टर्म्स, माय एक्स एंड आई थॉट ही इज डेटिंग हर. तो मेरे माइंड में फर्स्ट perception उसका वो था. Then I got to know that. Then we started talking. She was like, shit यार, please, I hate the thought that you even thought about that. I can date him. I was like, I like you. I like you. That's how we bonded and I'm still very grateful that I have a friend like her in my life. And Yeah, I think that's great. And you also have built so many new friendships recently. Yeah. And I have heard it somewhere like friendships you build in your 30s or late 20s, those friendships are the strongest, I think. And I think मेरे को ऐसा लगता है जैसे तेरे guy friends ज़्यादा रहे हैं ना, मेरी हमेशा girl friends ज़्यादा रही हैं. And I've always had a small circle because I wanted to. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी में invest कर रही हूँ ना, like I can't have 10 best friends. मुझे ऐसे वो 4 best friends को अपना सब देना पसंद है. A lot of people are very social, ठीक है, तो वो थोड़ा सबसे बना के रखते हैं. जैसे I know a friend of yours जिसके birthday पे मतलब कितने लोग आए होते हैं because he is very social. तो मतलब he knows everyone. And some people are like that and some people are, they have a small circle and they share everything, every part of their life, every thought with those 4 people. So I think I've always had that kind of friendship. Like I've had phases wherein one person जिसके साथ day and night आप share कर रहे हो. And I'm very grateful that I've built a lot of friendships and especially girl friends because there are a lot of times when guys can get you and there are a lot of times when only girls can get you. Like you need both the friendships in your life, but you can just pick up the phone and vent to your friend, like girlfriend, right? Guys की हमेशा usually mentality क्या होती है, I want to help you. I want to take care of you. तू ऐसा कर, solution based mindset most of the time ये होता है. And sometimes you need that also. Don't know, I feel like I've grown a lot because of my friends. And अगर मेरी लाइफ में फ्रेंडशिप्स नहीं हुई होती तो मे बी आई वुड हैव टेकन लॉन्गर टू रीच वेयर आई एम. यार किसी की लाइफ में भी अगर फ्रेंडशिप्स ना होती तो मुझे लगता है आपकी पर्सनल ग्रोथ आपके फ्रेंड्स की वजह से होती है. है ना? मुझे एक्चुअल में लगता है आप बाहर की लाइफ अपने फ्रेंड्स की वजह से देखते हो. सब कुछ ज्यादातर एक्सपीरियंस अपनी फ्रेंड्स की वजह से करते हो. बहन भाई भी होते हैं बट मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स जैसे अभी तेरा भी कुछ भी अगर तेरा मूड ऑफ होता है, यू नो, अगर तू अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है तेरा एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, एक अलग माइंडसेट होगा टुवर्ड्स लाइफ. या समटाइम्स ना आप, सॉरी मैं तुझे कट करी, समटाइम्स जैसे विद योर siblings और with your parents ना, you don't want to disturb them. आप उनसे इतने connected होते हो ना, इतने deeper level पे कि उनके साथ no bullshit scene होता है कि आप नाटक भी नहीं कर सकते हो. Like वही even मैं if you बोलने try. वाली थी बट डिफरेंट सेट ऐसे बोलने वाली थी कि तुम इतने कंफर्टेबल भी होते हो ना अपने फैमिली के साथ कि अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना बात करने का तुम चुप रहोगे. बट फ्रेंड के साथ तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि बोलना तो है ना, बात तो करनी है. तुम बाहर लेकर आए उसे बात तो करेंगे. सोच अब किसी फ्रेंड के लिए यार ब्रो आई नीड यू, चल ठीक है चुपचाप साइड पे बैठे रहना है. But you can do that also if you feel that. मुझे ऐसा लगता है आपकी फ्रेंडशिप्स ना आपके रिलेशनशिप में भी स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं. आपको लगता है मेरी फ्रेंड मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, इफ आई एम लो, इफ आई एम सैड, दिस पर्सन. मुझे लास्ट 3-4 डेज में रियलाइज हुआ दैट आई एम सो ब्लेस्ड. लाइक लास्ट 3 weeks of my life were pathetic, like pathetic.
pathetic. But In caps. In caps. And actually, like, I was so low, I couldn't even get up physically, mentally, everything was fucked. But मुझे उस time ये realize हुआ, there are people who love me. Like, maybe I am wanting something else from life right now, and मेरा सारा attention उस चीज़ पे. But there are people who actually love me. Like, my trainer, she sent me cheesecakes. मतलब, she's my trainer, and obviously I built that bond. I built that bond with her. But वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हक करके बोलती थी, चलो ठीक हो जाओ. Like, उसकी कोई responsibility नहीं. And the other friend जिसके साथ मैं बात करती, like, I literally called her 4 days in a row, and I was like, bro, I'm sorry, I'm calling you, I'm just so sad right now. And I'm that kind of person, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, shit, दूसरे को bother नहीं करना, नहीं call करना, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी. But then she made me so comfortable, and she's like, I will have my days, and you have supported me when I was low. It's okay, you don't have to say sorry, you don't have to do this and that. When I was talking to her ना, somehow like वो 1 घंटा 1.5 घंटा धीरे small token, you start feeling slightly better. Like 2%, 3%, थोड़ा करके. That's true. मेरा भी Trainer का बोल रही थी क्या? हाँ, guys, इतना funny हुआ था. So Kritika was feeling low last week, and when we went to gym, suddenly I was doing cardio, and मेरे को मैसेज आता है साक्षी का, ट्रेनर का, क्या हो गया आपकी बहन को, वो घर चली गई. एंड मैं ऊपर आती हूँ बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना हमारे डिफरेंट फ्लोर पे और कार्डियो डिफरेंट फ्लोर पे. तो मैं ऊपर आती हूँ, उनका क्या हुआ, मेरे सामने खड़ी हुई, उनका छोड़ो, उसका थोड़ा सा लो हो रही है एंड शी इज नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो. तो वो चली गई. एंड वो फोन खोलती है अपना, बोलती है आज क्या है, 16th में, आज कोई डे तो नहीं होगा, पुच्ची वुच्ची करी होगी, किसी को याद आ गया होगा 16th में कोई ये करा था. मैं हंसी जा रही हूँ वहाँ पर, यार क्या बोलते रहते हो. कहते नहीं होता तो है लड़कियों का 16 मई को, मैंने हाथ पकड़ा 15 मई को. मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी तबीयत ठीक रही है. कहती अच्छा चलो ठीक है. फिर मैं गीतांजलि थी, मैं हेड वॉश करके रहती हूँ, उसने मुझे बोला, मैंने ना नीचे कृतिका के लिए चीज केक भेजे, आप प्लीज पिक कर लेना. मैंने कहा मैं हुई नहीं वहाँ पर. कहती अच्छा मम्मा को फोन करके बोल दो. मैंने कहा ठीक है. But how sweet of her. And even my other friend, she's like that, Nikita, she's also like that. Whenever I'm low or whenever I'm having a blah day at work also ना, randomly she'll send me something, and उसको याद रहता है कि वो तुझे journal चाहिए थी ना, तुझे ये पेन चाहिए था ना, वो तुझे ये crackers पसंद है ना, you like रागी chips ना. मतलब just आप इतना किसी के बारे में याद रख रहे हो ना, that's the biggest thing. Obviously every one of us can get things for ourselves. मतलब जब आपकी कोई छोटी सी चीज याद रख के उस पे एफर्ट डाल के स्पेशली ऑर्डर करके आपके लिए भिजवाते हैं ना, that's like the biggest thing. That's different. जिसमें एफर्ट्स डलते हैं. So that's very sweet, and I'm just grateful that I've built a lot of friendships naturally. And मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है like ये वाला part of my life is so easy for me because I don't expect anything from the other person. Like with her also, like everything was so gradual. We met, we saw each other, and we vibed. And I complimented her, she complimented me. Random, we started seeing each other. सबसे पहले मैंने उनसे बात करी, तुझे याद है? I remember. So declothing डाला हुआ था. Declothing, and मैं दीदी को जाकर बोली, उसने declothing पहना. You know, you feel so good when you see someone wearing your own brand, and और वो भी इतने close स्पेस में, राइट. बहुत कम लोग थे उस टाइम पर. क्या पॉसिबिलिटी थी कि किसी ने एक ने डी-क्लोथिंग डाला होगा. आई वाज लाइक, दीदी बोलती जाकर बोल ना, शी सीम्स स्वीट एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक, आई वेंट टू हर, लाइक यू आर वेयरिंग डी-क्लोथिंग, यू लाइक इट, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड देन दैट्स हाउ यू स्टार्टेड टॉकिंग. एंड मैं अपना जिम करने लग गई थी. एंड मतलब हमारी जो ट्रेनर है वो अभी तक इनसे इतना परेशान है कि अगर ये दोनों साथ में जिम आ जाती है तो इनका जिम 1 आवर से 3 आवर्स खिंच जाए, कि इतना ब्रेक लेती है बीच में. बट पता है मैंने आई रियलाइज आई एम द टाइप ऑफ पर्सन, इफ आई सी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, पता नहीं आई हैव दिस कॉलिंग, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज गोइंग टू बी माय फ्रेंड. लाइक ऐसे पर्पसली नहीं सोचती कि इसको फ्रेंड बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं होता कि आई एम गोना वाइब विद दैट पर्सन, आई हैव अ फीलिंग. एंड मैं भी धीरे धीरे अपनी तरफ से एफर्ट्स डालती हूँ, एंड अननोइंगली, लाइक ऐसे नहीं मलिशियसली नहीं होता कि ओ मैं कल आऊंगी इस टाइम पे इस बंदे से बात करेंगे. somehow you start bonding with that person and it grows on a different level. and हम दोनों ने एक दूसरे के इतने लोज देखे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम पे आप ज्यादा किसी के क्लोजर आते हो जब आप एक दूसरे के लोज देखते हो. एंड हम दोनों मतलब वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट जब हम ट्रॉमा और ये सब चीजों मजाक में बोल सकते हैं एक दूसरे को, कि हम पता है कि लाइक वी हैव गॉन थ्रू शिट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट विद द अदर पर्सन. एंड शी वाज टेलिंग मी कि यू नो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स. एंड शी इज लाइक कि मेरी ना कजन्स वगैरह कभी पॉडकास्ट चला देती थी तेरा और ये सब करती थी, तो मैं तुझे जानती हूँ तब से पहले. एंड व्हेन आई सॉ योर स्टोरी, व्हेन आई हर्ड योर स्टोरी, आई कुड सेंस द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. एंड लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग yesterday कि तेरी आवाज भी कहीं चल रही होगी ना, आई कैन रिकॉग्नाइज यू. तेरी दूर से आवाज भी मैं जान सकती हूँ. बट या लाइक इट्स अमेजिंग. तुझे पता है हमारी आवाज ब्लूटूथ पे अच्छी लगती है. हाँ, आई होप यू आर एंजॉयिंग द पॉडकास्ट एंड यू आर लाइकिंग आवर वॉइसेस. ये सेक्सी लग रही है ना. हेलो, कट. आई रियली वांट टू कंपेयर टू फ्रेंडशिप्स, मेल फ्रेंडशिप एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स. जैसे तू बात करी थी दैट आई जनरली हैव अ रियली स्मॉल सर्कल बिकॉज आई वांट टू बी इन दैट सर्कल. मैं उनके साथ इनिशिएट करना चाहती हूँ कॉन्वर्सेशन. एंड द example which you gave about that friend of mine, the guy friend
ऑफ माइन, यू वोंट बिलीव अगर उसके बर्थडे पे 50 लोग आते हैं ना, उसका 50 लोगों के साथ पर्सनल कनेक्शन है. यू वोंट बिलीव दिस. मतलब You can't have a personal connection with उसका है, मैं मजाक नहीं Personal connection एवरी डे क्या होता है. माई फ्रेंड टोल्ड मी, शी वाज लाइक जैसे द मोमेंट ही स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस ही कॉल्स वन पर्सन. अच्छा क्या चल रहा है तेरी लाइफ में. सेकंड पर्सन, अच्छा तेरी लाइफ में ये हो रहा है, ओ ये हो रहा है मेरी लाइफ में तो ये हो. थर्ड, उसको जितने अगर 50 तो ज्यादा हो गए, 10-15 लोग जितने भी आए थे ना. 10 is a different thing. 50 तो बहुत ही हो गए ना यार. यार शादी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसके याद करो. अगर उसके बर्थडे पे आते हैं ना, उसको सबकी लाइफ में पता होगा कि आज डे में क्या चला है, और सबको उसकी लाइफ That's like a true friend. फिर वो इतना dedicated है. मैं बोल रही हूँ लड़के वो ऐसे होते हैं, उनको मजा आता है. सिर्फ एक कॉल करा 2 मिनट्स का, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में बताइए. मैं करूँगी कल से ये सब कर. बस ठीक है यार, मैं शॉप पे बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, चल ठीक है बाय. बस उसके सारे फ्रेंड्स को पता होता है कि अपडेटेड रहते हैं सब कहाँ पर है. सब एक ग्रुप है उनका, उन सबको पता है एक एक बंदा कि अभी इस टाइम पर ये कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर होगा, क्योंकि पूरा टाइम मैसेजेस पे अपडेटेड रहते हैं कि यहाँ घूम रहे कहाँ. नॉट विद हिम, आई हैव सीन इट विद माय बॉयफ्रेंड आल्सो. ही कीप्स एवरीवन अपडेटेड, नॉट जस्ट मी. एवरीवन नोज वेयर ही इज. His guy friends know. But he has 4 close friends. I've seen. Yeah, he has 4 close friends. बाकी random extra friends हो सकते हैं. closest, हाँ closest 4-5 Max. हाँ closest friends he has. But हाँ ठीक है, बाकी जो extras होंगे उनको भी पता होता था आज ही काम पर, अभी यहाँ गया, हाँ, अभी ये updated ना. मतलब मेरी लाइफ में मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैक्स तुझे पता होगा एंड हिम, दैट्स इट. और कभी मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया तो उसको पता होगा, फिर चल उसको तो एवरीडे का पता ही होता है बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग. दैट्स इट. 3 पीपल. मोस्ट ridiculous arguments friends have had. Fight या argument? आर्ग्यूमेंट, फन आर्ग्यूमेंट तो ये होता है, अरे कहाँ जाना है, मैं तो आई कैन नेवर डिसाइड. Stupid, ऐसे कि तेरे को लगा था इसका कोई सर पैर नहीं था, still you had that argument and उसके बाद you still laugh at it. Somebody told me something, then I was like I didn't expect this from you, that you weren't loyal behind my back and this and that, and then this person was like, but share what happened, and I was like, no, I'm not gonna tell you what happened. And I became friends with the person again also. ये क्या तूने बताया भी नहीं? नहीं. मेरा तो बहुत फनी हुआ था. We were out somewhere in Bombay and something happened at that point of time and it was all over the news and everything. My best friend, she was at this place with all of my friends. मतलब सारे एक ग्रुप था, वहाँ पर चिल कर रहे थे. एंड वहाँ से एक पर्सन को पता था, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट यू, और दीक्षा इज देयर इन बॉम्बे एंड दिस हैपेंड. I remember. मैं भी थी ना. हाँ, शी डिड नॉट कॉल मी. उसके बाद 2 दिन बाद कॉल आता है, हाय यू आर बैक, ये वो. मैंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. शी वाज लाइक करा क्या मैंने? मैंने कहा तेरे को बिल्कुल परवाह नहीं थी, मैं मर जाती, मैं हो जाती, तूने कॉल नहीं करा मुझे, उस बंदे ने कॉल करा. फिर मैंने बहुत शाउट करा उसके ऊपर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस लाइक 3 days बैक आल्सो, कि वी हैव हैड आर्ग्यूमेंट्स जिसमें हमने बहुत स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स. एक ही हमारे बीच में ऐसे मेजर फाइट हुआ जिसमें हमने रियलाइज करा, उसने क्या कहती, मैंने रियलाइज करा कि मैं कोई भी डिटेल, स्मॉलेस्ट डिटेल नहीं छोड़ूंगी तेरी लाइफ की, और तूने रियलाइज करा कि फालतू में चिल्लाना नहीं है. आई वाज लाइक या, बट हाँ फिर जब तक वो मेरे लिए कॉफी और बलून लेकर आई थी कुछ की, तब मैंने उसको घर से निकाला था. तो कोई आता घर से निकालता, हाउस स्वीट. घर से बोला था जा मेरे को बात नहीं करनी तुझसे. देन शी गॉट कॉफी एंड बलून एंड एवरीथिंग, फिर ठीक हो गया था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. I had a friend for 14 years. I got married and she joined some private college in LKU. She stopped talking to me. She did not even arrive at my wedding. I tried contacted her and talking to her, but she just answered in yes and no, and that's it. बात खत्म. She went offline. Any idea what might have happened to her? I don't know. मुझे ऐसा लगता है you can't. She might be going through something. Maybe she was actually feeling something. You might have had an argument long back and maybe she was holding on to that. Like with people, with human beings, we are so complicated. We can never predict what's gonna happen, and somebody can say that I'm gonna be your friend for life and this and that, because in that moment you're feeling that person is not lying, but you can't. I've just realized detachment is the वो thing. जब तक कोई है आपकी life में, have fun, enjoy. I know it's not easy to say, and I have also lost a lot of friends and people do change, and I was also shocked a lot of times कि did I do some, हमेशा उधर did I do something wrong, मैंने ये करा, मैंने वो करा. But अगर आपको याद है और अच्छे से दिल पे हाथ रख के अगर आप सोचो, आपको याद है कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करा, and that person still decided to ghost you, then you can't do anything about it. Like you just have to accept it and move on. I wish the best for the person, and I hope हमारे paths कभी मिले, and just so you know, you're gonna get good friends in your life, and ऐसा नहीं होगा कभी भी कि obviously उस बंदे की जगह कोई fill नहीं कर सकता, हर बंदे की personality बहुत different होती है, but then you're gonna meet people who are gonna appreciate you for who you are without having to beg them कि don't leave me, be my friend, they'll be there for you. Yeah, that's true. मैं एक क्वेश्चन अपने आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछना चाहती हूँ. अन्य सबके मतलब ये ना ऐसा क्वेश्चन है कि सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कभी ना कभी. What are your thoughts on
guys having girl best friend, partner But- having girl best friend, and vice versa. Your girlfriend having a guy best friend. I've had partners who had girl best friends, so I didn't have a problem with that. I'm the kind of person until you Very prove close girl best very friend. close कि girl अगर best अगर friend. अगर तू कॉल पर है and she's lying with him, मतलब ऐसे कि घर पर है. घर वाला ऐसा कोई his friend- family is very close to that friend. फैमिली वॉज क्लोज, दे वर टॉकिंग ऑन कॉल ऑल्सो रेगुलरली, बट ऐसे घर वाला सीन ये सब नहीं हुआ कि दे चिलिंग टुगेदर हर टाइम, ऐसा नहीं हुआ. आई डोंट नो, आई कांट से मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ, बट मैंने ये वाला देखा है फेस कि शेयरिंग एवरीथिंग, एवरी डिटेल, बीइंग ऑन कॉल, हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड. काफी ईयर्स से वो फ्रेंड्स थे, एंड मुझे ऐसा लगता है अनटिल अनलेस यू प्रूव मी रॉन्ग, तब तक मैं तुम पे बिलीव करूंगी. यार सोचने के लिए कितनी चीजें होती हैं. आप को कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड या मतलब ऑपोजिट सेक्स का बेस्ट फ्रेंड भी ना हो, तब भी किसी को चीट करना ना, तो वो कैसे भी चीट कर सकता है. बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम, बिकॉज एज अ पर्सन इफ यू लव समवन ना डीपली, वो हमारी बड़ी गंदी आदत होती है, वी वांट टू पोजेस दैट पर्सन, हमारा ही रहे, मेरा ही रहे, एंड दैट कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ लव ओनली. बट if the person realizes कि this is bothering you, if actually this is bothering you on a deeper level, and अगर उसके लिए वो relationship ऊपर important ज़्यादा होगा, then obviously वो आप friend हो तो side पे आप ही पिसोगे. That's true. ये प्यार का पंचनामा देखो याद है, उसपे वो बोलता है, ये एक तो बताओ लड़कियों के गाय बेस्ट फ्रेंड आते कहाँ से? आते कहाँ से? तू यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, हमें अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है. लड़कों को क्या लगता है? एंड में भी वो दिखाते हैं कि वो द गाय बेस्ट फ्रेंड हैड फीलिंग्स फॉर her, yeah. इन अ वे वो उसको बोल रहा था कि अच्छा छोड़ना, ये ऐसा है तेरा बॉयफ्रेंड, उसमें ये कमी है वो कमी है. एंड पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर इतनी क्लोजनेस है, मतलब गर्लफ्रेंड्स हो आपकी, इफ माई बॉयफ्रेंड हैज अ गर्ल बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक आई विल बी जेलस. Because as a girlfriend, I want to be the only girl in his life Yeah. who he shares everything with. मेरे को नहीं चाहिए कि और कोई ऐसे एक लड़की के साथ भी वो सेम चीजें शेयर कर रहा हो, या फिर कॉन्वर्जेशन या डीपर लेवल पे वो भी whatever he's feeling, वर्क वाइज, बिजनेस वाइज, कुछ भी हो. आई डोंट वांट इतनी चीजें उसके बारे में किसी को पता हो जितनी मेरे को पता है. एंड गाय बेस्ट फ्रेंड्स में भी क्या होता है कि अगर माई पार्टनर हैज अ गाय बेस्ट फ्रेंड, तो फिर क्या होता है उसमें कि लड़के ना कुछ लिमिटेड चीजें शेयर करते हैं, राइट? बिकॉज बोलते हैं कि वो गाइज आर नॉट वेरी सेंसिटिव, बट वो अपनी गर्लफ्रेंड्स और अपनी पार्टनर के सामने बहुत चीजें शेयर करता है जो एक बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता होता. सो आई वांट टू बी दैट पर्सन इन हिज लाइफ, नॉट कि अच्छा मेरे को पता है उसको भी पता होगा. सो आई विल बी जेलस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. स्टार्टिंग में आई विल ट्राई टू बी वेरी कूल एंड एवरीथिंग, बट आई विल बी जेलस, एंड मुझे पता है मेरा रिलेशनशिप आगे जाकर सफर करेगा. Yeah. But don't you think वैसे ऐसे लगता है कि some people who are mature, यार देख, मेरा पर्सनली आई हैव हैड I'm not talking about you, मैं बोल रही हूँ कि if you have a mature partner ना, अगर वो आपको इतना comfortable भी feel करा रहा ना, आपको कभी ये feeling नहीं आएगी. Most of the time if you are also secure as a person. अगर आपको फीलिंग आ रही है समटाइम्स, मतलब आप बात कर सकते हो अपने पार्टनर से कि आई एम फीलिंग इनसिक्योर, आई एम फीलिंग दिस एंड दैट, उसके बाद आपको रीअश्योरेंस मिल जाए, मे बी ये भी हो सकता है लाइक यू ऑल्सो फील बेटर. मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स भी जो रहे हैं, उनके लाइफ में भी जो रिलेशनशिप्स उनके वर्क करे हैं, चल रहे हैं जिनके भी, उनके लिए उनका पार्टनर मुझसे भी ऊपर रहा है, विच शुड बी द केस. आई थिंक लाइक उनके तो तभी ऐसे चल रहे हैं, मतलब आई वुड want कि मेरा पार्टनर भी मुझे इतनी प्रायोरिटी दे, इतना प्यार करे हर चीज से. एंड आई थिंक दैट्स हाउ मैं वही बोल रही हूँ, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन फ्रेंडशिप बॉन्ड एंड लव बॉन्ड. एंड अगर वो थिन लाइन भी बिल्कुल, अगर फ्रेंडशिप बॉन्ड भी इधर है और आपका लव बॉन्ड भी इधर है, तब जाकर प्रॉब्लम सबको होगी. आई फील या मतलब आई कांट से कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई हैव नॉट फेस दिस कि यू आर हैंगिंग आउट विद योर ऑपोजिट जेंडर वाला फ्रेंड ऑल डे ऑल नाइट लॉन्ग. बट या जिसके साथ हुआ होगा वो that person might have Exactly. better. Yeah. But last question, do you think a girl and a guy can be friends? I have seen both. A Yeah. girl and a guy can be friends, and abhi tak I have this girl in our group who's friends with everyone and every guy, and they are very good friends, very close और friends. कभी भी हमेशा प्लेटोनिक रहे, कभी भी कुछ दोनों की साइड से किसी की साइड से भी फीलिंग नहीं आई. नहीं, कभी भी नहीं आई. वो एक मुझे लगता है बॉन्ड ही डिफरेंट होता है, यू नो. वो ऐसा बिल्कुल ना भाई वाला बॉन्ड बन जाता है, तू मेरी भाई है, तू मेरा yeah. भाई है. वो बॉन्ड ऐसा होता है कि कभी भी आगे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ सकती, बिकॉज बट बहुत सारी ऐसी फ्रेंडशिप्स भी होती है विच टर्न इनटू relationships. They started off as friends. They started off as friends and वो एक पैक्ट आजकल लोग बनाते हैं ना, 27 तक अगर कोई नहीं मिला तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा. एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं आपके बारे में फिर वो फील करता है. If someone says that, like if I don't get anyone till 27, I'll marry you. That means he or she is thinking about in you. that And aspect. yeah, some corner आप कुछ उस हिसाब से मैटर करते हो उसके लिए लाइफ में. Yeah. है ना? I've never had feelings for my friends ever. Like opposite gender वाले I किसी भी. can't say the same. Oh, you तेरा different case है. But मैं अभी थोड़े दिन पहले I was talking to my friend and he told me that a girl and a guy can never be friends if they're not dating ऐसे
तो वो फ्रेंड्स नहीं तुम पता नहीं आई डोंट नो इफ आई एग्री विद दैट यार अगर टू पीपल आर वेरी अट्रैक्टिव हाँ वेरी तो अट्रैक्टिव दे कैन स्टिल बी फ्रेंड्स पता नहीं यार अगर दोनों की लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है इमेजिन है दिल है मुश्किल एंड उसकी एंडिंग चेंज कर दो एंड थोड़ा सा रणबीर कपूर का थोड़ा बड़ी सा क्यूट मूवी है वो नेचर थोड़ा सा और बिहेवियर अगर हम थोड़ा सा मैनली और उस वे में कर दे मैस्कुलिन ज्यादा कर दे तो फिर इमेजिन द होल सिनेरियो कुछ तो हो जाता कुछ तो हो जाता बट या दैट डिपेंड्स Yeah. आप किस स्टेज पे हो लाइफ के समटाइम्स व्हेन यू आर लाइक आई डोंट वांट टू डेट एनीवन मे बी तो कोई भी हो आपके सामने तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा बट येस गाइस वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट और मे बी लेटर ऑन We can discuss Let it us know with Shivesh when Shivesh is Oh coming. yes, up. next podcast is with my friend Shivi dear. We're gonna record it tomorrow, Yeah. and I'm gonna head out, guys. I have to shoot. It's really really hot. I hope everyone is staying hydrated and you guys are enjoying the Yeah. podcast. And I hope everyone's doing good. And guys, last में मैं एक चीज कहना चाहूंगी. कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, pathetic से pathetic. मैं अभी इस फेज में थी, लास्ट फेज में कि मुझे किसी की पॉजिटिव चीज सुनने में भी ना ऐसा लग रहा था चुप हो जाओ, पॉजिटिव बोलना भी मत मेरे आगे कि अच्छा होता है, दुनिया अच्छी होती है, ये होती है, वो होती है. लास्ट में सिर्फ ये याद रखना, अपना टाइम आएगा. आज मैंने स्टोरी में डाली है. छोटी छोटी खुशियां गाइस, छोटी छोटी खुशियां, छोटी-छोटी वन स्टेप एट अ टाइम. वी आर साइनिंग ऑफ गाइस. बहुत ज्यादा गर्मी है. मैं लिटरली पीछे से बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि पानी गिर रहा है मेरे ऊपर. वेट हो रही है दीक्षा, बट आप नॉट इन दैट बट आई एम वेरी प्राउड. मेरे को पहले बिल्कुल स्वेट नहीं आता था एंड मुझे लग रहा है मैंने इतना कार्डियो कर करके अपनी बॉडी को इतना पुश कर दिया कि नाउ आई एम स्वेटिंग. Really? I don't- रियली गुड फॉर योर बॉडी. ऐसा- स्वेट आपको बहुत जल्दी आप बट ऐसे मैं स्वेट नहीं करती तो मेरी कैलोरीज बर्न नहीं होती तुझे लोग. नो ऐसे नहीं होता. नहीं स्वेटिंग का होना बहुत ज्यादा. मेरे को We'll पहले check this बिल्कुल on स्वेट नहीं Google. आता था बिकॉज ऑफ इंक्लाइन वॉक एंड एवरीथिंग. मैंने अपनी बॉडी को उस चीज पे पुश करा है कि अब मुझे इतना स्वेट आता है. We'll talk to the gods, Google gods. Yes. We'll search. Yes, and with that, We'll see you in the next one, guys. Bye. guys, हमने मेकआउट कर लिया.